Hello students, welcome to unit number 13 amines compound, and today in our lecture number 5 we are proceeds towards the preparations of amines by various methods. So in this lecture we starts with a number 4 method. It's a reduction of amines. As we know that in our prior lessons there are some various methods that we have to study already. The first method is the catalytic reductions or reductions of nitro compounds by means of catalytic reductions. Number 2, from alkyl or benzyl halide and ammonia or amines, or sometimes called as Hofmann's ammonolysis method. Third one is from nitriles as well as isonitrile, but isonitrile is not in your curriculum, but regarding to NTA I already focusing or I already studied about the these isonitrile points, and today we starts with the reactions of amides, right? So in these portions of reductions of amides, simple, it's a primary amide. For example, if I having a primary amide, because there are 3 types of amide, but in our textbook they only focusing on primary amide, but we are definitely studied about the secondary and tertiary too, right? If the primary amide is reacted with a lithium aluminium hydride, is, as we know that in ether, and 0.2 step is with hydrolysis. So it's converted, your carbonyl group is converted into methylene group. Simple, it's a C double bond O, carbonyl group is reduced into the methylene group. So we get a primary amine as our product. Primary amine as our product. For example, if I take a CH3CONH2, we know that the name of this compound or the pet name of this compound is acetamide, and now this acetamide is reduced with the help of lithium aluminium hydride. So the carbonyl group of this acetamide, which is turned into CH2, so we get a product is ethylamine, and we know that this ethylamine is a primary in nature. Same way, one more example, if I take a benzamide, aromatic amide, benzamide, right? So this benzamide, right, when reacts with a lithium aluminium hydride in presence of ether, so your carbonyl group is converted into methylene group. Methylene means CH2. So we get a product is CH2, right? So it's a benzylamine, and this benzylamine is also a primary in nature. So this is all about the primary amides reduction, but secondary and tertiary amines can be prepared by the reductions of secondary and tertiary amides. For example, if I take a example of CH3CONHCH3, we know that the compound name is N-methyl acetamide, and it's a secondary in nature because NH is connected with 2. Okay, so no problem, you have to carry out these reactions with the help of lithium aluminium hydride. So your carbonyl group is converted into methylene group, otherwise remaining portions are the same. So we get a product is methyl amine. So this methyl amine, it's a secondary in nature. Same way, if we carried out these reactions with the help of tertiary amide, this is the example of tertiary amide, right? So the name of this compound is N, N dimethyl acetamide, and this is because nitrogen connected with a 2-methyl and CO, so it's a tertiary in nature. Same way, this tertiary amide is reacted or which reduced with the help of lithium aluminium hydride. So here the carbonyl group is converted into what? So it's converted into CH2. Okay, and remaining portions is as usual the same, okay, or unaffected. So the name of this compound is ethyl dimethylamine, and this is tertiary in nature.
So in nutshell, this primary amine, secondary and tertiary amines can be prepared by the reductions of the corresponding amides, right? Primary or secondary or tertiary with a lithium aluminium hydride. So this is all about the reduction of amides, right? So this is all about the reductions of amide. In our next portion, so next our process is a Gabriel-Thalamide reaction. It's a Gabriel-Thalamide reactions. So what is this process of this Gabriel-Thalamide reactions? So first we start with the reactions. First we have to take a thalamide that we already prepared in our prior lesson in carboxylic acid. When phthalic acid is reacted with ammonia, so it's converted into thalamide, and when we heated too much, so it's converted into thalamide. Okay, so the compound which can be written like that, C double bond O, C double bond O, and here is a NH. So this is nothing but it's a thalamide. Okay. Now this thalamide is reacted with a potassium hydroxide. This potassium hydroxide must be alcoholic in nature. Or when we perform this reaction, so at that time HOH means water is released and we get a potassium salt of thalamide. Okay, so here C double bond O, same way C double bond O and N minus and K plus. Simple water is released and N minus K plus is joined. So the name of this compound is potassium thalamide. Okay. Now this potassium thalamide, because there is a now this is a very good nucleophile, and now this nucleophile is attached with a any type of alkyl halide or aryl alkyl halide. Likewise, I have to take a C2H5I or C2H5Cl, whatever, right? So at that time they release KCl, and we get a product is like that. Here C double bond O, same way C double bond O, here N, right? So this N is related with a C2H5. यहाँ पे क्या हो गया, KCl निकल गया है, C2H5 का न्यूक्लियो, क्योंकि दिस इज C2H5Cl में हमें मालूम है कि दिस इज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस. इट्स अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल. सो द atom of nucleophile on this primary haloalkane means this alkyl halide, or even you have to take a aryl alkyl halide too, but not react with a aryl halide. Okay, इसको हम बाद में देखेंगे. So N minus when reacts with a C2H5, so it's a simple displacement or substitution reactions, and we get a product is a N-ethyl thalamide. हम उसको क्या बोलेंगे? N-ethyl thalamide. अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, तो अभी मैं उसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा. तो हाइड्रोलाइसिस किसके साथ हो जाएगा, तो क्या आइदर तुम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराइए या आप बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी करा सकते हैं. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो क्या होगा, तो कि इससे दो प्रोडक्ट हमेरी जो एक प्रोडक्ट है वो जो हमने जहां से शुरू किया था थैलिक एसिड से, वो थैलिक एसिड हमें वापस मिल गया है, राइट? इसको हम थैलिक एसिड बोलेंगे बिकॉज 2COOH ग्रुप आर अटैच्ड विद अ फिनाइल रिंग एट अ ऑर्थो पोजीशन. इसको बोलते हैं थैलिक एसिड. और फिर यहाँ पे जो मुझे मिल रहा है वो है C2H5NH2. तो हम उसको क्या बोलेंगे? इथाइल एमाइन बोलेंगे. और ये प्राइमरी एमाइन का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें मिल गया है. आपको समझ में आ रहा है? ग्रेबियल थैलेमाइड में मैंने क्या किया था थैलेमाइड से. फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं. मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और भी जानकारी दे दूं. This is a very convenient method. For the preparation of aliphatic and aryl alkyl primary amines. क्यों?
इससे क्यों, क्योंकि ये क्यों कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि इससे हम है ना वो प्रिपरेशन ऑफ प्योर, यहां से मुझे प्योर कंपाउंड मिल सकता है, इसलिए ये वेरी कन्वीनियंट मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था कि व्हेन थैलीमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद दिस इथेनॉलिक और अल्कोहलिक KOH गिव्स अ पोटेशियम थैलीमाइड विच इज ऑन हीटिंग विद अ सुटेबल अल्काइल, यहाँ पे आपको जो भी लेना है, अल्काइल हैलाइड लेना है या एराइल अल्काइल हैलाइड लेना है, so which is converted into their n substituted thaliamides में चला जाएगा, and this upon the subsequent hydrolysis with either dilute hydrochloric acid under pressure or with alkali which gives a primary amine। हम यहाँ पे बेंजाइल एमाइन भी इस तरह से ही बना सकते हैं। देखिए इसमें एक दूसरा भी एक पॉइंट यहाँ पे मैंने समझा, ये थैलिक एसिड है ना, ये विच इज कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू थैलीमाइड, हम इसको थैलीमाइड में कन्वर्ट करके विच इज यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, तो ये भी उसका एक बेनिफिट है, हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन ये भी एक बेनिफिट है। तो अभी उसका एक लिमिटेशंस क्या है, उसका एक लिमिटेशंस भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लिमिटेशंस के लिए हम देखेंगे कि कौन सा लिमिटेशंस हमें, देखिए यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एरोमेटिक एमाइन है, एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस, जैसे मेरे पास होता है, जैसे मुझे एनिलीन बनाना है या मुझे टॉल्यूडीन बनाना है, आपको मालूम है ना, एनिसिडीन बनाना है, एक्सेट्रा जो भी हो, राइट, which cannot be prepared by this method, ये इस मेथड से नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि हमें मालूम है बिकॉज इन द केस ऑफ एराइल हैलाइड्स which do not undergo nucleophilic substitution reaction with potassium thaliamide under mild condition। हमें मालूम है अगर मैं यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, तो पहले तो क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन में से Cl मुझे इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तो ये Cl निकालना ही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन देयर आर 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आउट ऑफ 5 स्ट्रक्चर्स 3 स्ट्रक्चर्स हैविंग अ CCl डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी डबल बॉन्ड होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जा रही है, इसलिए क्लोरीन को निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। दूसरा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, यानी इसके परसेंटेज ऑफ Sb बहुत ज्यादा हो गए हैं, ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन क्या है कि अगर फिर भी हमने क्लोरीन निकाल दिया तो जो एरोमेटिक रिंग में बाकी तो फिनाइल कार्बोकेटाइन ही मुझे दिखाई देगा, उसकी स्टेबिलिटी नहीं है। तो ये सभी जो हम देखा था हमने हैलो अल्केन और हैलो एरिन में, तो ये सभी वजह यहाँ पे काम करती है, इसलिए हम यहाँ पे एनिलीन या कुछ इस तरह से कंपाउंड है वो गैब्रियल थैलीमाइड प्रोसेस से हम नहीं बना सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस। हमको यहाँ पे शॉर्ट नोट अच्छी तरह से पूछी जा सकती है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है फॉर प्योर एलिफेटिक एंड एज वेल एज एराइल अल्काइल एमाइन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, नंबर 6 वाला है, हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिखाया गया है नंबर 6 में, वो है बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड। यानी हमारे पास जो प्राइमरी एमाइड है उसमें से हम बनाएंगे, लेकिन एक कार्बन यहाँ पे कम हो जाएगा, यानी डिग्रेडेशन। यहाँ पे कई बार ये रिएक्शंस को हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस भी बोल रहे हैं, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस भी हम उसको बोल रहे हैं। क्लियर। अभी क्या होता है ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस में, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे क्या था, हमने आज पढ़ा कि यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड था वो CH2 में चला गया, यानी जितने कार्बन 2 थे तो 2 वाला ही एमाइन मिला, जितने थे उतने ही मिलते हैं, देयर इज नो चेंज इन कार्बन इन योर प्रोडक्ट। ओके, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे हॉफमैन प्रोसेस करूंगा तो यहाँ से बीच में से CO ही निकल जाएगा, यानी कार्बोनिल ग्रुप निकल जाएगा, या हम दूसरी तरह से इस तरह से बोल सकते हैं कि इसका जो अल्काइल ग्रुप है वो डायरेक्टली NH2 एमाइन के साथ यानी नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा।
समझ में आ रहा है? तो ये जो है प्रोसेस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों प्राइमरी एमाइन बना रहे हैं, लेकिन इसमें इतने ही कार्बन है जितने होने चाहिए। ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी एमाइड, तो उसमें वो इस तरह से कॉन्सेप्ट हमें दिखाई दे रहा है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड के लिए हम समझना चाहते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शंस में शुरू इस तरह से ही करना चाहता हूं कि मेरे पास है एमाइड है RC डबल बॉन्ड NH2। मैं यहाँ पे अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है, देखिए ये प्राइमरी एमाइड है, समझ में आ रहा है? उसका जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ राइट KOH, ये जो KOH मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वो आइदर क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए या एक्वियस होना चाहिए। सो इथेनॉलिक होना चाहिए या एक्वियस, जो भी हो, उसका ब्रोमीन के साथ जैसे रिएक्शंस होगा आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये दोनों है ना साथ में मिलके वो KOBr बनाते हैं। KOBr को हम क्या बोलेंगे आपको मालूम है? KOBr को इसलिए पोटेशियम हाइपोब्रोमाइट हम बोलते हैं। ये जो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड जिसने यहाँ पे बनाया है, तो वो कहां पे चला जाएगा? देखिए यहाँ पे RNH2 हो गया है, फिर क्या हो गया है, K2CO3 निकल गया है, प्लस KBr भी निकल गया है, प्लस वाटर निकल गया है। क्लियर? फिर से आप देखिए मैंने आपको क्या दिखाया है, RCONH2 का जैसे मैंने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया है तो वो RNH2 में चला गया है। देखिए ये प्राइमरी एमाइन है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हुआ, दिस प्राइमरी एमाइन विच हैज 1 कार्बन लेस देन द ओरिजिनल एमाइड, यहाँ पे जो था इसमें से एक कट हो गया है। दूसरी तरफ से इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि इन दिस रिएक्शंस दिस माइग्रेशन ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप और द एराइल ग्रुप which is occurs from the carbonyl carbon atom of amide to the nitrogen atom, यहाँ पे ये है वो शिफ्टिंग होके यहाँ पे चला गया है। तो इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ये तो मैकेनिज्म की बात है। यहाँ पे प्राइमरी एमाइड हमें बैलेंस करना होगा, तो ब्रोमीन है यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं यहाँ पे 2 करूंगा, यानी 4 पोटेशियम होने की वजह से मैं यहाँ 4, टोटल 5 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। क्लियर आज आपको समझ में आ रहा है? मैं उसका एग्जाम्पल भी देना चाहता हूं, जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मेरे पास है CH3 CH2 CO NH2, तो मुझे मालूम है कि इसको हम क्या बोलेंगे, तो कि इसको हम बोलेंगे प्रोपियोनेमाइड। ये जो प्रोपियोनेमाइड है मेरे पास, तो प्रोपियोनेमाइड का मैंने यहाँ पे रिएक्शंस करवाया है ब्रोमीन के साथ अल्कोहलिक KOH में, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया है, तो कि CH3 CH2 NH2, यानी मुझे यहाँ पे मिल गया है इथाइल एमाइन, मुझे यहाँ पे मिल गया है, प्लस यहाँ पे रिलीज हो जाएगा K2CO3 प्लस ट्वाइस KBr प्लस ट्वाइस H2O। ये प्रोपियोनेमाइड की बात की। मैं अभी आपको बेंजेनेमाइड की भी बात यहाँ पे करना चाहता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे बेंजेमाइड है, ये जो बेंजेमाइड है उसका भी रिएक्शंस में ब्रोमीन और KOH से जिस तरह से मैं यहाँ पे ले जा रहा हूं, तो मुझे क्या होगा, ये फिनाइल ग्रुप है NH2 के साथ लॉक होके वो एनिलीन में यानी प्राइमरी एमाइन में चला गया है, राइट। बाकी तो जो भी है वो बात सेम है, K2CO3 है, ट्वाइस KBr है और H2O है, वो तो जिस तरह से होना चाहिए इस तरह से हो जाएगा। सो इन दिस रिएक्शंस मैं अभी फिर से मैं बोलता हूं, यहाँ पे देखिए मैं इस यहाँ पे लिख के भी देता हूं, राइट। इन दिस रिएक्शंस क्या हुआ है, तो कि माइग्रेशन ऑफ द अल्काइल और द एराइल ग्रुप occurs from carbonyl carbon atom to the atom of the amide to the nitrogen atom। क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपनी तरह से मैं यहाँ पे आपको मैकेनिज्म में आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी जरूरत नहीं है,
क्योंकि बुक में नहीं दिया हुआ इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा उसका जो पहचान हो जाए तो दिस रिएक्शन इज वाइडली यूज फॉर स्टेपिंग डाउन और डिग्रेडेशन ऑफ अ होमोलोगस सीरीज। आपको एक कम करना हो तो ये रिएक्शंस का हम यूज कर सकते हैं। फिर से मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस रिएक्शन इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टेपिंग डाउन ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस जो सीरीज है हमारे, तो यहां पे इसका हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखाई गई है, हमारी जो बुक में यहाँ पे दिखाई गई है, तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जो प्रोसेस थी वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो उसका भी पता आपको चल गया होगा। अभी मैं आपको एक और बात यहाँ पे, अभी एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। हमें एक कन्वर्जन्स दिया हुआ है और जो कन्वर्जन्स है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि CH3CH2Cl है। हमें मालूम है इसका जो नेम है IUPAC नेम वो है क्लोरोइथेन, और वी हैव टू कन्वर्ट इनटू प्रोपेन 1 एमाइन। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 है, यानी एक हमें बढ़ाना है। तो मैं लास्ट लेक्चर में हमें देखा था कि अगर एक हमें बढ़ाना हो तो उसका रिएक्शन हम KCN इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल कर सकते हैं। इस बेस्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस की वजह से यहाँ पे KCl निकल जाएगा। ये साइनेशन प्रोसेस हम इसको बोलते हैं, और इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो साइनेट अपना जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक होके वहां पे हमें फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम बोलेंगे प्रोपेन नाइट्राइड। क्लियर? अभी जो यहाँ पे CN है उसका हम रिडक्शन कर देंगे, जैसे हमने साइनेट में पढ़ा हुआ था लास्ट लेक्चर में, इसका हम रिडक्शन कर देंगे। तो इसका रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, तो CH3 CH2 CH2 NH2 ये हमें मिल जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1 एमाइन। प्रोपेन 1 एमाइन। क्लियर हो जाएगा? आपको समझ में आया? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है। नंबर दूसरा हमें क्या पूछा गया है कि यहाँ पे हमें पूछा गया है C6H5CH2Cl। यहाँ पे दिया गया है C6H5CH2Cl। हमें मालूम है इसका जो कॉमन नेम है हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड बोलेंगे। ये एराइल अल्काइल हैलाइड है, यानी क्लोरोफिनाइल मीथेन है। उसमें से हमें बनाना है 2-फिनाइल इथेनेमाइन, यानी हमें एक कार्बन उसमें भी बढ़ाना है सेम रिएक्शन से। ओके, मैं यहाँ पे NaCN भी यूज कर सकता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, राइट। माइनस NaCl यहाँ पे चला जाएगा। साइनेशन प्रोसेस है। साइनेट इज द बेस्ट न्यूक्लियोफाइल विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स टू दिस पार्शियली positive carbon and the displacement of chlorine with Na, so it's converted into NaCl and we get the product is like that, C6H5 CH2 C triple bond N। हम उसको क्या बोलेंगे, हम मालूम है उसको हम बोलेंगे बेंजाइल साइनाइड, या हम उसको फिनाइल इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। फिर मुझे उसका रिडक्शन करवाना है, तो रिडक्शंस में H2Na के साथ भी कर सकता हूं, आपको मालूम ही है। सो H2Na के साथ जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शंस करवा रहा हूं, तो C6H5 एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, C6H5 CH2 CH2 NH2 मिल जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसका नाम है 2-फिनाइल इथेनेमाइन। 2-फिनाइल इथेनेमाइन ये हमें यहाँ पे मिल गया है। क्लियर हो गया है? आपको समझ में आ रहा है? फिर मुझे 13.3 जो यहाँ पे पूछा गया है 13.3 में, वो जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड द IUPAC नेम ऑफ द एमाइड्स, राइट। जो अभी क्या पूछा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड द IUPAC नेम ऑफ द एमाइड विच गिव्स प्रोपेनेमाइड बाय हॉफमैन रिएक्शंस। अभी जो प्रोपेनेमाइन मुझे मिल रहा है हॉफमैन से, तो इसका मतलब एक कार्बन हमें ज्यादा लेना, क्योंकि प्रोपेनेमाइन में तो 3 कार्बन होते हैं,
और मुझे एमाइड 4 कार्बन वाला लेना पड़ेगा। यानी मुझे यहाँ पे आप देखिए तो 4 कार्बन वाला, जैसे मेरे पास से CH3 CH2 CH2 CO NH2 में जैसे यहाँ पे लूंगा उसका IUPAC नाम क्या है, तो ब्यूटेन एमाइड। हमें यही पूछा गया है कि द एमाइड विच गिव्स प्रोपेनेमाइड बाय हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, तो उसका स्ट्रक्चर और IUPAC नेम क्या है, तो उसका ये स्ट्रक्चर है और उसका ये IUPAC नेम है। दूसरा हमें यहाँ पे पूछा गया है कि द एमाइन्स प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजेमाइड। हमने अभी दिखाया था ये बेंजेमाइड का डिग्रेडेशन करके हमें मुझे क्या मिला था, एनिलीन मिला था। तो यानी हमें दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो एनिलीन का स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। और उसका IUPAC नाम क्या है, तो अभी तो एनिलीन ही उसका IUPAC नाम है, या हम बेंजीन एमाइन भी लिख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी दिखाया आपको वो NCERT इंटेक्स सोल्व्ड क्वेश्चन का था। अभी हम NCERT इंटेक्स अनसोल्व्ड क्वेश्चन में चले जाते हैं। So in this 13.3 NCERT in-text unsolved question, they ask how will you convert? So it's a conversions from benzene into aniline. हमें बेंजीन में से एनिलीन में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है कि हम बेंजीन में से एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बेंजीन लिया हुआ है, तो बेंजीन का मुझे नाइट्रेशन करना पड़ेगा। नाइट्रेशन हमें मालूम है कॉन्सनट्रेटेड HNO3 और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से हो पा रहा है, राइट, एट द 333 केल्विन टेम्परेचर पे। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिल पाएगा। देखिए मुझे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन मिल गया है, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, इट्स अ हाइड्रोकार्बन पोर्शंस में हमने पढ़ा था, ये नाइट्रेशन प्रोसेस है। बाद में हम उसका क्या करेंगे, तो बाद में हम उसका रिडक्शन कर पाएंगे। रिडक्शन बेस्ट क्या है, वो Fe वाला था ना, स्क्रैप वाला, FeHCl इज द बेस्ट मेथड, राइट। तो योर नाइट्रोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू एनिलीन, तो यहाँ पे एनिलीन पे वो कन्वर्ट हो गया है। तो ये फर्स्ट मेरा जो कन्वर्जन था वो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। अभी जो दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला हमने यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन इनटू एनिन डाइमिथाइल एनिलीन। तो मैं देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बेंजीन से ही मैं अपनी शुरुआत करूंगा। फिर एज एबाव, मैं यहाँ पे एज एबाव लिख देता हूं, यानी हमें इस तरह से एनिलीन तो बनाना है। तो यहाँ पे एनिलीन मेरे पास आ गया है, देखिए यहाँ पे मेरे पास एनिलीन तो बन गया है। अभी एनिलीन में से मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे 2 मिथाइल यहाँ पे लगाने हैं, यानी आई हैव टू टेक 2 मोल ऑफ मिथाइल आयोडाइड। तो क्या होगा, HI निकल जाएगा, या अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन है, अल्काइलेशन ऑफ एनिलीन है। देखिए यहाँ पे N है और 2 मिथाइल इस तरह से आ जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, N डाइमिथाइल एनिलीन बोलेंगे, N डाइमिथाइल एनिलीन। समझ में आ गया। तीसरा हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मुझे यहाँ पे दिया गया है Cl CH2 4Cl, इस तरह से दिया गया है, और मुझे कन्वर्ट करना है उसको हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन में, यानी हेक्सेन में मुझे कन्वर्ट करना है। अभी दिया है 4 कार्बन, मुझे करना है कन्वर्ट 6 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें मालूम ही है ये इसका नाम है 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन था। तो अभी क्या करेंगे हम उसका, तो कि हम उसके 2 KCl लगाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इसको साइनेशन भी हम बोलते हैं। हमें मालूम है कि यहां से KCl निकल के साइनेड यहाँ पे हमने दिखा दिया, यानी 2 कार्बन तो यहाँ पे हमने बढ़ा ही दिए। इसको क्या बोलेंगे हम, हेक्सेन 1,6 डाइनाइट्राइल, हम इसको बोलेंगे। फिर मुझे यहाँ पे इसका रिडक्शन कर देना है विद हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हम रिडक्शन करेंगे साइनाइड का, राइट। किस तरह से करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ईथर वाला जो कॉन्सेप्ट है, और बाद में मैं उसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, तो मुझे इस तरह से कोई कंपाउंड मिलेगा, NH2 है, CH2 है, 6 टाइम है, और NH2 मुझे यहाँ पे मिल गया है। हमें ना मालूम है कि इसका जो IUPAC नेम है हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन, हम उसको दिखा सकते हैं, हेक्सेन 1,6 डाइएमाइन।
तो इस तरह से हमने जो कन्वर्जन हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि हाउ विल यू कन्वर्ट, सो इन 13.3 कुछ इस तरह से हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो आज हम यहीं पे हम अपनी जर्नी यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम अपना जो प्रोग्रेस करेंगे तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इन दिस कोविड ईयर डिलीटेड टॉपिक है, लेकिन अभी एनटीए ने कुछ अपना अनाउंसमेंट नहीं किया हुआ है, तो मैं लॉन्ग जो हमारी जो साइट है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको कराऊंगा। मैं बोलूंगा भी खरा कि ये डिलीटेड टॉपिक है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए क्योंकि मैं कुछ भी ड्रॉप करना नहीं चाहता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच।